ఇప్పటివరకు ఉన్న ప్రధానాంశాలు ఒకసారి చూద్దాం. కేంద్రం ఆధ్వర్యంలో ఘనంగా తెలంగాణ విమోచన దినోత్సవాలు. పరేడ్ గ్రౌండ్లో జాతీయ జెండా ఆవిష్కరించిన హోంమంత్రి అమిత్ షా. శాసనసభ ప్రాంగణంలో ఘనంగా సమైక్యతా వేడుకలు. జెండా ఆవిష్కరించిన అసెంబ్లీ స్పీకర్, మండలి చైర్మన్. భాజపా బారాసా రెండూ ఒకటేనని ఉద్ఘాటించిన రేవంత్ రెడ్డి. సిడబ్ల్యూసీ సమావేశాలను సహించలేకే పోటాపోటీ వేడుకలంటూ ధ్వజం. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా మొదలైన గణేష్ ఉత్సవాల సందడి. మండపాలకు తరలుతున్న విగ్రహాలు. పార్లమెంట్ సమావేశాల నేపథ్యంలో ఇవాళ అఖిలపక్ష భేటీ. పార్టీల అభిప్రాయాలు తెలుసుకోనున్న కేంద్రం. కేంద్రం ఆధ్వర్యంలో జరుగుతున్న తెలంగాణ విమోచన దినోత్సవ వేడుకల్లో కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్ షా పాల్గొన్నారు. సికింద్రాబాద్ పరేడ్ గ్రౌండ్ నుంచి ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా చూద్దాం. మా వారు ఎక్కడ విధులు నిర్వహించినా మేము ఇక్కడ మా కుటుంబంతో కలిసి సురక్షితంగా ఉంటాము. ఇది చాలా సంతోషకరమైన విషయము. ధన్యవాదాలు. जय श्रीमान, मेरा नाम बिंगी राजू है. मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहता हूं क्योंकि दक्षिण भारत में एसएसबी का पहली एस्टैब्लिशमेंट सरकारी द्वारा बनाया जा रहा है. इसके कारण चाहे मैं कहीं पर भी पोस्टिंग होने पर मेरा परिवार कैंपस में सुरक्षित रह सकता है. इसलिए मैं आपको बहुत आभार व्यक्त करता हूं. जय सर. धन्यवाद महोदय. अब माननीय मुख्य अतिथि महोदय से अनुरोध है कि लिबरेशन ऑफ हैदराबाद संस्थान की वर्चुअल प्रदर्शनी का रिमोट द्वारा बटन दबाकर लॉन्च करने की कृपा करें. माननीय मुख्य अतिथि महोदय. नेक्स्ट वीडियो. माननीय मुख्य अतिथि महोदय द्वारा Liberation of Hyderabad. Hyderabad has a rich historical legacy that spans over 2,000 years. The Nizam Mir Usman Ali Khan, occupying hundreds of magnificent palaces and kothis, according to Time magazine of 1937, was the richest man in the world, while his people were placed in abject poverty. Repression of the people and communal violence was rampant. Razakars, the fascist gundas led by Qasim Razvi, were allowed indirectly to pursue his nefarious activities unchecked. As the situation got out of control and it was clear that no other alternative remained open, the government of India took the decision to send Indian Army to Hyderabad. The Indian forces were commanded by Major General Jayanto Nath Chaudhary under the direction of Lieutenant General Maharaj Shri Rajendra Singh Ji. This action was given the name Operation Polo. On 13th September 1948 at 4 a.m., one platoon of the Indian Army from Sholapur marched under Major General Chaudhary and entered the state to liberate Hyderabad. రాజ్భవన్ లో గవర్నర్ మాట్లాడుతున్నారు. ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా చూద్దాం. The message that CPR to be trained, challenge, each and everyone will be trained, and definitely the people of Telangana will save lives, and making Telangana the topmost state should be the aim of each and everyone. I again wish you all a very happy Liberation Day. Thank you so much.
धन्यवाद महोदय। और अब माननीय मुख्य अतिथि महोदय द्वारा हैदराबाद मुक्ति संग्राम में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले प्रसिद्ध पत्रकार और शहीद श्री शोएबुल्ला खान एवं रामजी गौड़ आदिलाबाद जिले में गोंड समुदाय के आदिवासी नेता के ऊपर विशेष डाक कवर का विमोचन किया जाएगा। मैं अनुरोध करता हूं श्री के प्रकाश, मुख्य पोस्टमास्टर जनरल तेलंगाना सर्कल, डॉक्टर PVS रेड्डी, पोस्टमास्टर जनरल हैदराबाद क्षेत्र एवं श्रीमती TM शीला, पोस्टमास्टर जनरल मुख्यालय को कृपया आप मंच पर आएं। सबसे पहले प्रसिद्ध पत्रकार और शहीद श्री शोएबुल्ला खान 1919లో పుట్టిన షోయబుల్లా ఖాన్ అప్పటి నిజాం గురించి అమానవీయ కార్యకలాపాలను గురించి రాసిన ఏకైక పాత్రికేయులు. ఖమ్మంలో పుట్టిన షోయబుల్లా ఖాన్ గాంధీ మార్గాన్ని పాటిస్తూ ఎంతో ముందుకి చైతన్యవంతుల్ని చేశారు. ఆయనని అమరవీరులుగా అయ్యారు శ్రీ షోయబుల్లా ఖాన్ గారు. అలాగే రామ్జీ గౌంద్ గారు ఒక గిరిజన ప్రాంతానికి పెద్దగా నిలబడి బ్రిటిషర్లకు సాయుధ పోరాటం చేశారు. అమర వీరులైన రామ్జీ గౌంద్ గారి నిర్మల్ తాలూక్ కలెక్టర్ కి వ్యతిరేకంగా, అరాచకాలను వ్యతిరేకంగా పోరాటం చేశారు. 2 ఏళ్ల పాటు పోరాడారు. 1860 ఏప్రిల్ 1న కలెక్టర్ బలగంతో రామ్జీపై సైన్యాన్ని దాడి చేసింది. 1000 మందిని చంపి చెట్లకు వేలాడదీశారు. అప్పటివారు రామ్జీ గౌంద్ గారు బ్రిటిష్ పరిపాలనకు వ్యతిరేకంగా పోరాడి మొట్టమొదట ఫస్ట్ రెబెలియన్ గా చరిత్రలో మిగిలిపోయారు. धन्यवाद महोदय। अब मैं श्री गोविंद मोहन, सचिव संस्कृति मंत्रालय द्वारा स्वागत भाषण हेतु अनुरोध करता हूं। आदरणीय गृह एवं सहकारिता मंत्री भारत सरकार श्री अमित शाह जी, आदरणीय केंद्रीय संस्कृति, पर्यटन और पूर्वोत्तर विकास के मंत्री श्री जी किशन रेड्डी जी, भारत सरकार के गृह सचिव श्री भल्ला साहब, आवर्तन ब्यूरो के निदेशक श्री तपन डेका जी, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल और SSB के महानिदेशक जो दोनों मंच पर उपस्थित हैं, और इस कार्यक्रम में जितने भी प्रतिभागी गण हैं जो तेलंगाना राज्य से और अन्य राज्यों से आए हैं, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल और अन्य CAPFs के रणबांकुरे जो यहाँ आज उपस्थित हैं, और जो सांस्कृतिक कार्यक्रम में जितने लोगों ने भी भाग लिया, मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। 17 सितंबर 1948 भारत के इतिहास में एक बहुत महत्वपूर्ण पल था, एक बहुत महत्वपूर्ण पन्ना है। उस दिन हैदराबाद राज्य को विधिवत रूप से भारत गणराज्य में सम्मिलित किया गया था, जिसकी प्रेरणा सरदार वल्लभ भाई पटेल ने दी थी, और जिनके तत्वाधान और जिनके मार्गनिर्देशन से ये रजाकारों का जो यहाँ पे एक बर्बरता और क्रूरता का एक संग्राम चला था, वो अंत हुआ था, और ऑपरेशन पोलो के बाद हैदराबाद राज्य भी भारत गणराज्य का भाग बना था। इसी महत्वपूर्ण इतिहास के पन्ने की स्मृति को पुनर्जीवित करने हेतु पिछले वर्ष 17 सितंबर 2022 को कल्चर मिनिस्ट्री, संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार ने हैदराबाद मुक्ति दिवस का आयोजन इसी परेड ग्राउंड में किया था, और आदरणीय गृह एवं सहकारिता मंत्री जी ने इस कार्यक्रम की अध्यक्षता की थी। इसके उपरांत पूरे वर्ष हमने हैदराबाद मुक्ति दिवस से संबंधित कार्यक्रम तेलंगाना, महाराष्ट्र और कर्नाटक के कई भागों में किए हैं, और इस महत्वपूर्ण पल की स्मृति को पुनर्जीवित रखा है, और इसी के अधीन आज का कार्यक्रम भी हो रहा है। తెలంగాణ శాసన మండలిలో జాతీయ సమైక్యతా దినోత్సవ వేడుకలు ఘనంగా నిర్వహించారు. శాసన సభాపతి పోచారం శ్రీనివాస్ రెడ్డి, మండలి చైర్మన్ గుత్తా సుఖేందర్ రెడ్డి పాల్గొని ముందుగా పోలీసుల గౌరవ వందనం స్వీకరించారు. అంబేద్కర్ విగ్రహానికి నివాళులర్పించారు. అనంతరం అసెంబ్లీ వద్ద పోచారం జాతీయ జెండాను ఆవిష్కరించారు. మండలిలో జాతిపిత మహాత్మా గాంధీ చిత్రపటానికి పూలమాల వేసి గుత్తా నివాళులర్పించారు. మండలి ప్రాంగణంలో పలువురు ఎమ్మెల్సీలతో కలిసి జాతీయ పతాకాన్ని ఆవిష్కరించారు.
కేంద్రం ఆధ్వర్యంలో జరుగుతున్న తెలంగాణ విమోచన దినోత్సవ వేడుకల్లో కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్ షా పాల్గొన్నారు. సికింద్రాబాద్ పరేడ్ గ్రౌండ్ నుంచి ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా చూద్దాం. కార్యక్రమంలో పాల్గొంటున్నటువంటి కళాకారులు, విద్యార్థులు, అతిథులు అందరికీ కూడా ఈ యొక్క అద్భుతంగా జరుగుతున్నటువంటి ఈ యొక్క విమోచన దినోత్సవాల సందర్భంగా హృదయపూర్వకమైనటువంటి స్వాగతం పలుకుతా ఉన్నాను. ముందుగా తెలంగాణ ప్రజలకు ఈ యొక్క విమోచన దినోత్సవ సందర్భంగా హృదయపూర్వకమైనటువంటి శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను. దేశానికి స్వాతంత్రం వచ్చినా, తెలంగాణకు స్వాతంత్రం వచ్చినా మరి ఈరోజు మనం అందరం ఆలోచన చేయాలి. దేశానికి 1947 15th ఆగస్టు స్వాతంత్రం వస్తే ఈ హైదరాబాద్ సంస్థానం నిజాం రాజ్యం ఉన్నటువంటి ఈ తెలంగాణ ప్రాంతానికి 13 నెలలు ఆలస్యంగా స్వాతంత్రం రావడం జరిగింది. ఈ స్వాతంత్రం కూడా మామూలు స్వాతంత్రం కాదు. అనేక లక్షలాది మంది పోరాటాలు చేశారు, వేలాది మంది బలిదానమయ్యారు. ఈ బలిదాన తర్వాత భారత సైన్యం కూడా ఈ యొక్క నిజాం సైన్యంతో పోరాటం చేసి ఓడించి ఇక్కడ 3 రంగుల జెండా ఎగరేశారు. మనకు స్వాతంత్రం తీసుకొచ్చారు. మనం స్వేచ్ఛా స్వాతంత్రం మనము లభించడం జరిగింది. 13 నెలల ఆలస్యంగా మనకు స్వాతంత్రం వచ్చింది. ఆ 13 నెలల పాటు భారతదేశమంతా కూడా మిఠాయిలు పంచుకుంటూ స్వాతంత్ర పండుగలు చేసుకుంటుంటే ఇక్కడ నిజాం సైన్యము, రజాకార్లు, కాసిం రజ్వీ నేతృత్వంలో రజాకార్లు, నిజాం నేతృత్వంలో నిజాం ఆర్మీ గ్రామీణ ప్రాంతాల మీద, పేద ప్రజల మీద, రైతుల మీద పడి అనేక రకాల కృత్యాలు చేశారు, దౌర్జన్యాలు చేశారు. హిందూ స్త్రీలను మానభంగాలు చేశారు, నగ్నంగా బతుకమ్మలాడించారు, అనేక రకాలుగా దోపిడీ చేయడం జరిగింది. వేలాది మందిని హత్య చేశారు. అదొక అద్భుతమైనటువంటి పోరాటం. గ్రామీణ ప్రాంతాలలో ప్రతి గ్రామంలో రజాకాల రక్షణ కోసం గ్రామ ప్రజలు వేలాది గ్రామాలలో బురుజులు నిర్మించుకున్నారు. మా అక్కలు, చెల్లెళ్ళు రోకలి బండలతో, కారపు పొట్లాలతో రజాకాలను ఎదుర్కొన్నటువంటి చరిత్ర నా యొక్క రజాకారుల వ్యతిరేకంగా జరిగినటువంటి తెలంగాణ చరిత్ర. అటువంటి చరిత్ర మనకందరికీ ఈరోజు దురదృష్టకరం ఏంటంటే 75 సంవత్సరాలు ఈ చరిత్రను తొక్కిపెట్టేటువంటి ప్రయత్నం చేశారు. ఈ చరిత్రను ఈ ప్రజలకు తెలియకుండా ఈ దేశాన్ని పరిపాలించినటువంటి అనేక పార్టీలు, ఈ రాష్ట్రాన్ని పరిపాలించినటువంటి అనేక పార్టీలు ఈ సెప్టెంబర్ చరిత్ర మనకు తెలియలేదు. मैं आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी से मैं बताना चाहता हूं, 75 इयर्स पहले जब का होम मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल इस धरती के ऊपर तिरंगा लहराए थे भारत सरकार के द्वारा, 75 इयर्स के बाद फिर एक बात आपका कार्यक्रम के द्वारा सितंबर 17 को इस तेलंगाना धरती पर तिरंगा लहराया. 75 इयर्स कोई सरकार, कोई व्यक्ति इस तेलंगाना लिबरेशन डे को ऑफिशियली नहीं बनाया. यह तेलंगाना जनता को कुचलने के लिए, दबाने के लिए, इस स्टोरी को, इस संघर्ष को दबाने के लिए पूरा कांग्रेस पार्टी नेतृत्व में प्रयास किया है. मगर आज आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आदेश पर आपके नेतृत्व में इस 75 इयर्स के बाद इस धरती पर फिर एक बार तेलंगाना लिबरेशन डे का फेस्टिवल इस धूमधाम से हम भारत सरकार के द्वारा बना रहे हैं. माता की मंच पर उपस्थित मेरे मित्र और साथी मंत्री, तेलंगाना भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्रीमान जी किशन रेड्डी जी, भारत सरकार के गृह सचिव श्री अजय कुमार भल्ला जी,
संस्कृति मंत्रालय के भारत सरकार के सचिव श्री गोविंद मोहन जी, निर्देशक आसूचना ब्यूरो श्री तपन डेका जी, सीआरपीएफ के डीजी डॉक्टर सुजोय लाल थाउजन जी, एसएसबी की डीजी श्रीमती रश्मि शुक्ला जी, आज जिन्होंने शिस्तबद्ध और शौर्य से प्रेरित परेड का प्रदर्शन किया है, सीआरपीएफ और सीआईएसएफ के मेरे प्यारे जवान भाइयों बहनों, उपस्थित सभी पैरामिलिट्री फोर्सेस के परिवारजनों और तेलंगाना के प्यारे भाइयों बहनों, आप सभी को तेलंगाना मुक्ति दिन की मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं और बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। सबसे पहले मैं यहां हैदराबाद मुक्ति संघर्ष में लाखों जनता ने जो हिस्सा लिया, वो वीर नागरिकों को प्रणाम करना चाहता हूं। इसके साथ साथ कई लोगों ने हैदराबाद को मुक्त कराने के लिए अपनी जानों का बलिदान दिया, अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। वो जनता और वीर शहीद जवानों को भी मैं शीश झुकाकर श्रद्धांजलि देना चाहता हूं। और आज तेलंगाना, कल्याण कर्नाटक और मराठावाड़ के ये विशाल क्षेत्र को भारतीय संघ में विलय करने के लिए जिनकी प्रमुख भूमिका रही, वो सरदार पटेल को भी मैं बहुत श्रद्धा के साथ नमन कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। मित्रों, आज तेलंगाना मुक्ति के 75 साल पूर्ण हो रहे हैं। मैं कोई झिझक के बगैर कहना चाहता हूं कि महापुरुष, लोह पुरुष सरदार पटेल न होते तो तेलंगाना को इतनी जल्दी मुक्ति नहीं मिलने वाली थी। वो सरदार पटेल ही थे जिन्होंने सारी चीजों को ठुकराकर सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम के सिद्धांत को चरितार्थ कर हैदराबाद पुलिस एक्शन की डिजाइन की और उसको खून का कतरा बहाए बगैर निजाम के रजाकारों की सेना को सरेंडर कराने का साहस दिखाया। सरदार पटेल और केएम मुंशी की ये युति ने, ये जोड़ी ने तेलंगाना क्षेत्र के, कर्नाटक के बीदर क्षेत्र के और मराठावाड़ा के विशाल क्षेत्र को हमारे महान देश के साथ जोड़ने का काम किया। इसके साथ साथ तेलंगाना मुक्ति के लिए स्वामी रामतीर्थ, एस चेन्ना रेड्डी, नरसिम्हा राव, साईक बंदगी, केवी नरसिम्हा राव, विद्याधर गुरु, पंडित केशव कोरटकर और इसके साथ साथ अन्नाबेरी प्रभाकर राव, वर्दम येल्ला रेड्डी, रवि नारायण रेड्डी, बरुगुला रामकृष्ण राव, कलोजी नारायण राव, दिगंबर राव, वामन राव नाइक और श्री वाघमरे को भी मैं मन से श्रद्धांजलि देना चाहता हूं। मित्रों, अभी अभी देश ने अपनी आजादी का महोत्सव मनाया और आज तेलंगाना मुक्ति का दिन है। अंग्रेजों के गुलामी से मुक्ति के बाद, देश आजाद होने के बाद 399 दिन तक यहां पर पूर्ण निजाम का शासन रहा और 399 दिन 400 दिन समग्र तेलंगाना क्षेत्र अंग्रेजों के गुलामी से मुक्ति के बाद, समग्र देश आजाद होने के बाद 399 दिन तक यहां पर क्रूर निजाम का शासन रहा और ये 399 दिन 400 दिन समग्र तेलंगाना क्षेत्र की जनता के लिए नर्क की यातनाओं से भी
कठिन दिन थे। सरदार पटेल ने इस क्षेत्र की जनता की भावनाओं को सम्मान देते हुए 400वें दिन पर इस क्षेत्र को आजाद किया। कई संगठनों ने संघर्ष किया। आर्य समाज, हिंदू महासभा, उस्मानिया यूनिवर्सिटी में छेड़ा गया वंदे मातरम आंदोलन, बीदर क्षेत्र के किसानों द्वारा रचे गए लोक संघर्ष के गीत और आंदोलन, और युवाओं ने साथ में मिलकर तेलंगाना मुक्ति का जो आंदोलन किया था उसको अंतिम स्वरूप देने का काम हमारे श्रद्धेय लौह पुरुष सरदार पटेल ने किया। मित्रों, जैसा किशन जी ने बताया, 75 साल तक देश की किसी सरकार ने इस महान दिन को, इसकी ऐतिहासिक स्मृति को हमारी युवा पीढ़ी को याद कराने के लिए कार्यक्रम की रचना नहीं की। तुष्टीकरण की नीति के कारण हमेशा वो डरते रहे और तेलंगाना मुक्ति दिन मनाने की सिलसिला नहीं शुरू हुआ। मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत साधुवाद और बधाई देना चाहता हूं कि 17 सितंबर को गत वर्ष जब 75 साल हुए, उन्होंने एक नई परंपरा शुरू की। 17 सितंबर को सांस्कृतिक मंत्रालय तेलंगाना विमोचन दिन मनाएगा और वो महान शहीदों को श्रद्धांजलि देकर हमारे नई पीढ़ी को ये संघर्ष की याद दिलाएगा। मित्रों, इसके पीछे हमारे 3 उद्देश्य हैं। एक, नए पीढ़ी को, बालकों को, किशोरों को ये महान संघर्ष की याद दिलाना और देशभक्ति के संस्कार से सिंचित करना। दूसरा, उन शहीदों को श्रद्धांजलि देना जिन्होंने हैदराबाद मुक्ति के लिए काम किया। और तीसरा, अपने आप को राष्ट्र को पुनः समर्पित करना कि शहीदों ने जो स्वप्न देखे थे, इस प्रकार के राष्ट्र की निर्मित के लिए हम आगे बढ़े। आज यहां पर एसएसबी इब्राहिमपट्टनम के पारिवारिक आवास का वर्चुअल शिलान्यास हुआ है। एसएसबी की फोर्स में काम करने वाले दक्षिण भारत के सारे जवानों के परिवारों के लिए एक नई शुरुआत है और मैं आशा करता हूं उससे परिवारजनों के जीवन में काफी सुलभता आएगी, सुगमता आएगी और सुविधा युक्त जीवन ये जी पाएंगे। आज यहां पर प्रसिद्ध पत्रकार और शहीद सोहिबुल्ला खान और रामजी गोंड दोनों की स्मृति में डाक टिकट भी जारी किए गए हैं और आज यहां दिव्यांग भाइयों और बहनों को भी बैटरी से चालित ट्राइसिकलर का वितरण भी करने वाले हैं, क्योंकि आज हमारे प्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है और उसको हम सेवा दिन के रूप में भी मनाते हैं। आज ही के दिन मोदी जी का जन्म हुआ और विगत 9 वर्षों में आजादी के लिए संघर्ष करने वाले हमारे आजादी के नेताओं ने जो स्वप्न देखे थे, वो भारत के निर्माण के लिए मोदी जी के नेतृत्व में देश बहुत आगे बढ़ चुका है। 11वें स्थान पर जो रही थी हमारी अर्थव्यवस्था 2014 में, वो आज 5वें स्थान पर आई। चंद्रयान पहुंचाने वाला भारत विश्व में 4था देश बना है और G20 के माध्यम से भारत की संस्कृति, भारत की कला, भारत के खान-पान, भारत की वेशभूषा, भाषाएं, इस सभी को विश्व के अंदर प्रसिद्ध करने का काम हमारे सम्माननीय प्रधानमंत्री ने किया है। इसके साथ साथ अफ्रीकन यूनियन को G20 में शामिल कर G20 को G21 में परिवर्तित करने का काम भी हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया है। आतंकवाद, क्लाइमेट चेंज और अर्थव्यवस्था के बारे में मोदी जी का दृष्टिकोण समग्र विश्व के नेतृत्व ने आज स्वीकारा है और वो वैश्विक एजेंडा के रूप में दिल्ली डिक्लेरेशन से प्रस्तावित हुआ है। हमारे देश की कई धरोहर
चाहे उड़ीसा का कोणार्क मंदिर हो, चाहे नालंदा यूनिवर्सिटी हो, चाहे मधुबनी का पेंटिंग हो, इसको समग्र विश्व के सामने रखने का काम ये G20 समिट ने किया है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की वैश्विक मान्यता मिली। यूपीआई, बैंकिंग, आधार और मोबाइल टेक्नोलॉजी में भारत में जो क्रांति हुई है, इसकी भूरी भूरी प्रशंसा समग्र विश्व के नेताओं ने की है। मित्रों, आज मैं यहां आया हूं तब बहुत लंबी बात करना नहीं चाहता, परंतु एक बात जरूर कहना चाहता हूं। ये 400 दिन के निजाम के शासन में यहां की जनता ने जो अपार यातनाएं सहन की है, इसका हिसाब विश्व की यातनाओं के इतिहास में कहीं पर मिलना नहीं। इसीलिए सरदार पटेल ने कहा था, स्वतंत्र हैदराबाद भारत के पेट में कैंसर के समान है, उसका ऑपरेशन के बगैर और कोई रास्ता हो नहीं सकता। और इसलिए उन्होंने पुलिस एक्शन के माध्यम से हैदराबाद को स्वतंत्र करने का काम किया। बड़ी दुर्भाग्य की बात है, तेलंगाना की रचना के बाद भी तेलंगाना विमोचन दिन मनाने में वोट बैंक की पॉलिटिक्स के कारण ये पार्टियां जो संकोच कर रही है, मैं उनको कहना चाहता हूं, जो अपने देश के इतिहास से मुंह मोड़ लेते हैं, देश की जनता उनसे मुंह मोड़ लेती है। हमारे देश के इतिहास पर गौरव कर कर, हमारे शहीदों के शहादत पर गौरव कर कर, स्वतंत्र संग्राम के इतिहास पर गौरव कर कर ही हम इस देश और हैदराबाद को, तेलंगाना को आगे बढ़ा सकते हैं। और यहां पर जिस प्रकार से निजाम के क्रूर शासन ने कई फरमान दिए थे, माफूसा और गैर माफूसा का भेद खड़ा किया था, उससे मुक्ति सरदार पटेल ने दिलाई थी। कई ऐसी घटनाएं हैं जिसके जिक्र से भी आज रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैं एक ही का उल्लेख करना चाहूंगा। परक्कल्ला तेलंगाना 2 सितंबर 1947, 1500 से ज्यादा लोग भारतीय तिरंगा फहराने के लिए परक्कल्ला कस्बे में एकत्रित हुए। निजाम की रजाकार फौज ने जनरल डायर की तरह गोलियां चलाने का आदेश किया। 150 लोग घायल हुए, कई लोग मारे गए। ऐसा निर्मम हत्याकांड मराठावाड़ा के परभणी के गुंडा गांव में भी हुआ और बीदर के पास घोरटा में भी हुआ। इस सभी से मुक्ति दिलाने का काम सरदार पटेल ने किया। KM मुंशी और सरदार पटेल, ये 2 देशभक्त नेताओं ने हैदराबाद मुक्ति का डिजाइन किया और उसको अंत तक लागू किया। और 10 अगस्त 1948 को सरदार पटेल ने कहा था कि हैदराबाद समस्या के समाधान का एक ही रास्ता है और वह है हैदराबाद का भारत में विलय, जिसको 17 सितंबर 1948 को उन्होंने सरेंडर किया और निजाम शरण में आए। मित्रों, आज मैं तेलंगाना राज्य की जनता को, कर्नाटक के कल्याण कर्नाटक की जनता को और मराठावाड़ के महाराष्ट्र की जनता को कहना चाहता हूं कि ये जो दिन है, ये दिन की स्मृति जो है, हमारा संघर्ष है, हमारे शहीदों का बलिदान है, उसको युगों युगों तक हम याद कर कर रखें, जिससे आने वाली पीढ़ियां इससे प्रेरणा ले और देश के विकास के लिए अपने आप को समर्पित करें। अंत में मैं फिर से एक बार सरदार वल्लभ भाई पटेल, KM मुंशी और जिन जिन सभी महान आत्माओं ने देश के लिए, हैदराबाद मुक्ति के लिए बलिदान दिया, वो सबको प्रणाम कर कर मेरी वाणी को विराम देता हूं। मेरे साथ फिर से एक बार बोलिए, भारत माता की।